most of the time, in fact, I have seen lots of mistakes happening. In fact, I have made lots of mistakes as far as parenting of my children are concerned. So that is why I thought of doing this कि जो mistakes मुझे समझ में आ गए, तो I thought at least I will talk to the next generation. They will know कि ये mistakes हो सकता है, and at least their children's life will be better. That is the objective. That is why I am doing this. Okay, so let us start. Now, please tell me, please don't use the unmute and mute system. You can type, please, so that there will be, no, there won't be any disturbance. So who came first, a parent or a child? Who comes first in life? Who comes first, parent or child? Okay, parent. Aditya is saying parent, correct. Anybody else? Parent. Uh, Balsara is saying child. Kaise, how you are saying child? Most of the people are saying parent, I understand, but Chiara is saying child. Kaise, how you are saying, please explain. Child is very valuable, okay, but how? At first we are child. Okay, both come together. Hazel is right. After the child is born, we become parents. So actually, if you see, we are juniors. Whenever a baby is born, the same baby gives birth to mother or father. So 1 second later, you will become father or mother. So who comes first? Child comes first. Now there is a man. His name is Rajiv. So he's Rajiv, and he will become father when his son takes birth. So I have muted everybody. You won't be able to unmute yourself. So I'm sorry. Let me finish this. Then towards the end we will discuss. Otherwise it will be chaos. That is my request to all of you. So let me finish what I want to convey, and then towards the end I will unmute everybody. We can discuss. So, but let me cover the points which I want to pass on. So, what I want to say is we are actually junior. The parents are junior to the child. In fact, this is also the paradigm shift in thinking, that I'm saying we should learn from the child. Instead of teaching him, we should learn from the child. Now we think that we know everything. I'm father, I'm mother, I know everything. I have been in this world for more than 25 or 26 or 30 years, so I know more than the child. But child knows much more than us. आप देखोगे कोई बच्चा झगड़ा करता है, 10 मिनट के बाद भूल जाता है, लेकिन एक एडल्ट है वो जिंदगी भर याद रखता है. चाइल्ड प्रेजेंट में रहता है. चाइल्ड आप देखोगे प्रेजेंट में रहता है, लेकिन हम लोग वी आर एडल्ट्स आर नेवर इन प्रेजेंट. दे आर आइदर इन पास्ट और फ्यूचर. They are worrying about future, or they are repenting about past. That is why we are always tense. The child is blissful because child thinks of now. 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 And if you take now, the reverse of now, that is WON, that is one. If you see, reverse of now is WON. People win. The people who live in now, they win. Actually, we should study the child, the way the child thinks, the way the child operates. When the child is thrown in the air, हम लोग बच्चे को एयर में फेंक देंगे ऊपर, तो चाइल्ड हंसता है, because he has surety that the person who has thrown me up will catch me. 100% he will catch me. लेकिन आप इमेजिन करो किसी एडल्ट आदमी को ऊपर फेंक दिया और रोना चालू करेगा, because he doubts. The child doesn't have anything called doubt. He's a soul which is only trustworthy. He's trusting everybody. कुछ अच्छा हो गया तो हम लोग हंसते हैं. कुछ अच्छा हो गया तो हम लोग हंसते हैं. अदरवाइज हम लोग का चेहरे पे 12 बजे होते हैं. एंड बच्चा ऑलवेज हंसता है. कुछ प्रॉब्लम हो तो रोता है. अदरवाइज ही इज मोस्टली स्माइलिंग. एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच वी कैन लर्न फ्रॉम द चाइल्ड. सो दिस एटीट्यूड दैट आई नो इट ऑल, मैं इसका पिताजी हूँ या मैं उनका माताजी हूँ, तो आई नो एवरीथिंग. ये आई नो एवरीथिंग वाला चीज हमने बंद करना चाहिए. कि बच्चा कैन टीच यू. सचिन तेंदुलकर का एक बार बैड फेस चल रहा था, बहुत बार वो 90s में आउट हो रहा था. दैट टाइम ही आस्क्ड हिज सन दैट व्हाट डू यू थिंक, व्हाई इट इज हैपनिंग लाइक दिस. तो उसका बेटे ने बोला कि आप जब 94 पे जाओगे ना तो 6 मारो. व्हेन यू रीच 94 यू हैव टू हिट 6.
When you are on 96, you have to hit 4. You don't worry about. Or Sachin was exactly thinking opposite. He was thinking that I will play slowly because since I'm nearing the century, मुझे slowly खेलना चाहिए. Biggest mistake. And then Sachin said, my son taught me this, that actually he understood that he's going under pressure कि 90 क्रॉस हुआ, मैं टेंशन में जा रहा हूं तो मैं प्लेड करके सिंगल और डबल निकाल के सेंचुरी करने की कोशिश कर रहा हूं. उसके बाद में सचिन ने ऐसा नहीं सोचा. ही स्टार्टेड हिटिंग बिकॉज अटैक वाज हिज नेचुरल गेम. सचिन का अटैकिंग वाज अ नेचुरल गेम. तो सचिन ने बोला अभी 4 मारना है, 6 मारना है, सेंचुरी करना है. उसके बच्चे ने उसको सिखाया. कभी आपने आपके बच्चे को 5 6 7 8 साल के बच्चों को भी पूछा है कि मुझे ये प्रॉब्लम लग रहा है, तुम्हें क्या लगता है? व्हाई कांट वी टेक द ओपिनियन फ्रॉम देम? वन मिनट मैं सॉरी, आई हैड रिमूव्ड द हेडसेट. अभी आ रहा है आवाज सबको क्लियर? अभी आवाज आ रही है क्लियर? प्लीज टाइप. थैंक यू आशीष. ओके, सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट. दैट इज, अगर आपको मैं बोलूंगा एप्पल सीड, इफ आई गिव यू एप्पल सीड, जो सेब है ना, सफरचंद, एप्पल, उसका अगर मैं आपको सीड देता हूं, तो क्या आप बता सकते हैं कि एक सीड में कितने एप्पल्स छुपे हुए हैं? कैन यू टेल मी कि ये एक सीड में हाउ मेनी एप्पल्स आर हिडन? कैन समबडी टेल? पॉसिबल है क्या? Not possible. Or Chiara is saying plenty of apples. Nobody can actually say how many. There, it can be 0, or it can be lakhs of apples. Lakhs of apples, crores of apples. Now that means that seed has a potential. That seed has a potential to perform at the highest level, or that seed will not perform at all. That seed will give you lakhs of apples, or that seed will give you 0 apples. So there is always a gap between potential and performance. The seed has a potential of creating crores of apples, lakhs of apples, but actual performance may be lakhs of apples or 0 apples. Now there is a gap. Potential and performance, there is a gap. And your child has got immense potential. He can be chief minister, he can be prime minister of India, he can be Mukesh Ambani, he can be anybody. So he has the potential to become the best in whatever he chooses to do. But actual performance, maybe he will actually become as big as Mukesh Ambani, or he will become as big as prime minister or the chief minister or whatever, or he will be an ordinary person. So potential and performance का जो ब्रिज है, ब्रिज, वो जो गैप का जो ब्रिज बनाते हैं, वो कौन बनाएंगे? मतलब इन दिस केस एप्पल में से लाखों एप्पल आना चाहिए, वो किसके हाथ में? एप्पल के सीड के हाथ में है कि और किसी के हाथ में? हु डिसाइड्स दैट लैक्स ऑफ एप्पल्स विल कम आउट ऑफ दिस सीड? हु डिसाइड्स? नहीं, Hazel, I understand parents will. Farmer will decide. I'm talking about Apple, not parent. And let us not get into that. That I will come to. But farmer will decide. Farmer will decide. Now, if the farmer puts that seed, किसी पत्थर पे रख देगा वो. He has to take that seed and he has to put it in the soil. वो अच्छे सॉइल में लगाना चाहिए, पानी डालना चाहिए. Every day he has to take care. When the tree comes out, he has to support that tree. He has to take care of that tree. Then the tree becomes bigger. Initially, a big wind comes, he will support that tree so that the tree is not uprooted. जब ट्री बड़ा हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता कितना भी तूफान आएगा, तो ट्री ऐसा ऐसा होके मजबूत खड़ा रहेगा. लेकिन इनिशियली वो ट्री को सपोर्ट करना पड़ेगा, अच्छी जमीन में उसको प्लांट करना पड़ेगा. यू हैव टू गिव फर्टिलाइजर्स, वाटर, you have to take care. All that thing farmer has to do, so that one day that tree becomes big tree, and the tree will start giving you lakhs of apples, not 1 or 2, lakhs of apple. So initial support, yes Piyush, initial support. और ये जो है ना, फार्मर जो सीड के साथ करता है, माँ बाप बच्चे के साथ करते हैं.
when the child is born, he has a huge potential, he has unlimited potential. लेकिन हाउ वी आर फार्मिंग, हाउ वी आर पेरेंटिंग विल डिसाइड कि वो अमिताभ बच्चन होगा या और कुछ होगा. Whether he will be Amitabh Bachchan means he should be peak of his career. In my session I call that बचपन से बच्चन तक, बचपन से बच्चन तक. So बचपन से बच्चन तक मेरा वीडियो भी है यूट्यूब में, आप टाइप करना प्रशांत सावंत बचपन से बच्चन तक, you will find one video where I have talked about what parents should do so that your child becomes बच्चन, in that not in the sense of actor बनेगा, लेकिन बच्चन ने अपनी जिंदगी को जिस तरह से हैंडल किया है, वो उसके जो प्रोसेस है वो मैं पकड़ना चाहता हूँ अपने बच्चे में. वो सिर्फ आना चाहिए, जैसे डिसिप्लिन है, कंट्रोल है, व्हाटएवर, प्रोफेशनलिज्म है, टाइम का कदर करना है, ऑल दोस चीज बच्चे को आना चाहिए बचपन से बच्चे तक. सो वी आर दैट फार्मर, वी आर फादर एंड मदर, दे आर सपोज टू. अगर बच्चा आपका परफॉर्म नहीं कर रहा है आगे जाके, तो उसको बोल के फायदा नहीं है. इट इज आवर मिस्टेक, समवेयर वी हैव मेड अ मिस्टेक. एंड नाउ आपके जो बच्चे 3 साल 4 साल 5 साल में, आपको प्लीज बता, आई एम रिक्वेस्टिंग यू, इट इज वेरी क्रुशियल पीरियड, बिकॉज द बच्चा जब 8 साल क्रॉस करेगा, देन द प्रोग्रामिंग इज डन. आज उसका जो स्लेट है वो एम्प्टी है. यू कैन राइट वॉट एवर यू वॉन्ट, यू कैन राइट वॉट एवर यू वॉन्ट, बट आफ्टर 8 or 10 years दैट बिकम्स फिक्स्ड. नाउ दैट दो मट्टी जो है वो गीला है, यू कैन गिव वॉट एवर शेप यू वॉन्ट टू, लेकिन आफ्टर दैट मट्टी इज कड़क होने के बाद कुछ नहीं, टूट जाएगा. जैसे आप देखो रास्ते पे ये डाला हुआ है, सीमेंट डाला हुआ है, हम लोग क्रॉस करेंगे तो पैर का इंप्रेशन रहता है उसमें, फ्लैट में या कहीं भी, वो हमेशा हमेशा रहेगा. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपके ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. जिनके भी बच्चे 10 साल से नीचे है, 10 साल के ऊपर के बच्चों का पेरेंटिंग के लिए मैं अलग कुछ बात करूंगा, बिकॉज दैट इज नॉट व्हाट यू शुड डू अबाउट. ये जो बच्चे उनके साथ जो करना है उनके साथ करना अलग है. नहीं, यहाँ जो बच्चा आपके छोटे है, इट इज अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन योर शोल्डर्स दैट दे बिकम really good human beings and they become successful in life. So their performance in life totally depends on how you parent them. But it is a big responsibility that you please understand. Okay, दूसरी बात, let us go to the next point. Now let us understand this word parent. यहाँ जो पीपीटी में लिखा हुआ है, you don't have to write that down. I will send this PPT to you. आप मुझे व्हाट्सएप करिए आपका नाम, और यू कैन जस्ट राइट पेरेंटिंग, आई विल सेंड यू द पीपीटी. अपार्ट फ्रॉम दिस, इफ आई एम सेइंग समथिंग, इफ यू लाइक दैट और इफ यू थिंक, वो आप लिख के रखोगे तो ज्यादा अच्छा होगा. तो व्हाट इज पेरेंटिंग? इफ यू सी द वर्ड पेरेंट, इट इज pa-rent. What is the meaning of this? What do you think is the meaning of what I want to say? In the word parent there is rent. So what do I want to convey? To make child independent. Okay, लेकिन रेंट वर्ड, हाँ, गैलेक्सी A50s नाम मुझे नहीं मालूम, लेकिन it is temporary. We don't own the child. He or she is not our property. Child is not our property. कि मैं इंजीनियर नहीं बन सका, हाँ दीप्ति, मैं इंजीनियर नहीं बन सका तो बच्चों को इंजीनियर बनाऊंगा. मैं डॉक्टर नहीं बन सका तो बच्चों को डॉक्टर बनाऊंगा. मेरा ऑलरेडी डॉक्टर का बिजनेस है, तो मेरे बच्चों को मुझे डॉक्टर ही बनाना है, ताकि उसको मैं रेडीमेड बिजनेस दूंगा. वो अपनी प्रॉपर्टी नहीं है. We have not given birth to him. When I'm saying him or her, so don't misunderstand me. So we have not given birth to him. God has used our bodies to deliver the child on this planet Earth. God has used our bodies to deliver it is God's creation. We are just medium. And we should not think that I own this child and I will make sure कि मुझे जो करना है उससे करवाना है, उससे मैं करवा लूंगा, मेरी सब चलेगी इसके साथ. ऐसा नहीं करना चाहिए, प्लीज आप समझ लो. He is a God's gift to us, and we have to value that and nurture that so that he becomes a big man, good man, so that he helps others. जो बाकी जो भगवान की क्रिएशन है उनके लिए वो अच्छा करे, इस तरह का उसको इंसान बनाना है. So we have to first understand this is on rent. This parenting job is on rent. मैंने तुझे बचपन में इतना कष्ट करके बड़ा किया, अभी तू मुझे सपोर्ट करना ही चाहिए, अभी तेरे तू भूल गया एंड ऑल दैट. वो कुछ हम उसने बोला नहीं था आके कि मुझे गिव मी बर्थ. तो हमने ही वो किया था.
वी ओनली गॉट हिम ऑन दिस प्लैनेट, सो वी कैनॉट एक्सपेक्ट कि मैं जो बोलूंगा उसने करना ही चाहिए, माय वे और हाईवे। अगर ऐसा हुआ, आपको मालूम है इंडिया में हर 3 मिनट में एक बच्चा सुसाइड कमिट करने की कोशिश करता है, एवरी 3 मिनट्स वन। तो ये तो रिपोर्टेड केसेस है, वो एक्चुअली निकल नहीं जाता, कमिट, ही ट्राइज टू कमिट सुसाइड। क्यों? बिकॉज ऑफ, एक तो एजुकेशन में उसको प्रॉब्लम हो गया, फेल हो गया, माँ बाप ऐसा उसको टोकते हैं कि उसको लगता है यार खत्म ही कर देंगे। फिर करियर में अगर हो गया बच्चा, मतलब मैं बोल रहा हूँ 15 to 30 ये एज में, सो करियर में कुछ हो गया, जॉब चला गया या कुछ कर रहा था, उसके ऊपर मुंह के बल गिर गया, ही वांट्स टू क्विट। एंड और रिलेशनशिप में कुछ हो गया, सुसाइड। तो ये इतना खतरनाक चीज है, और आपको बच्चों को मेंटली टफ बनाना है, बिकॉज ये प्रॉब्लम्स तो आएंगे, हर एक की जिंदगी में आएगा। ऐसा बोलते कि वो जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी नहीं। वो एक क्रांति पिक्चर था, क्रांति, मनोज कुमार का, उसमें एक गाना था, उसका वर्डिंग था, वो आंखों का हंसना भी क्या जिस आंखों में पानी नहीं, और वो जवानी जवानी क्या जिसकी कोई कहानी नहीं। तो हर एक की जवानी में कुछ ना कुछ कहानी आएगी, और कहानी ऐसी भयानक भी हो सकती है किसी की कि वो आदमी ही कैन टेक दैट ऑप्शन ऑफ किलिंग हिमसेल्फ। तो इसके लिए बच्चों को मेंटली टफ बनाना, ये माँ बाप का पहले काम है। आई एम कमिंग टू दैट, आई विल टेल यू एग्जैक्टली हाउ यू कैन गो अबाउट इट, बट योर चाइल्ड शुड बी मेंटली टफ, बिकॉज जिंदगी आसान नहीं है, मरना आसान है, जीना डिफिकल्ट है। इट इज इजी टू डाई एंड वेरी डिफिकल्ट टू रिमेन अलाइव। और वो अगर वो फाइटर नहीं बने तो दैट विल बी प्रॉब्लम। सो वी दिस किड्स हैव कम थ्रू अस, नॉट बिकॉज ऑफ अस। अभी देखो, एक हम लोग का भी जो एजुकेशन सिस्टम है, आई विल गिव यू वन स्टोरी। जब अंग्रेज लोगों को हमारे यहाँ राज करना था, दे सेंड समबडी to India to just do some survey and present a report to parliament, and that person came here, he surveyed and he went back to parliament and he gave a report। और वो रिपोर्ट ने उसने बोला कि हम लोग इंडियंस को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, वी कैनॉट कंट्रोल इंडियंस। क्यों? कैन यू टेल मी व्हाट वाज दैट टाइम? ऐसा क्या चीज था वो टाइम पे जिसके वजह से वो बोला कि इंडियंस को कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट है? और वो जो बोला था वो बच्चों के बारे में कुछ था। व्हाट यू थिंक इट मस्ट बी? वो टाइम पे क्या था? ओके, आई विल गिव यू हिंट। स्कूलिंग सिस्टम कैसा था? स्कूलिंग कैसा था? व्हाट वाज द स्कूलिंग सिस्टम दैट टाइम? स्कूल्स के बारे में उसने कुछ बोला है? अनएजुकेटेड, लेकिन जो स्कूलिंग सिस्टम कैसा था? नॉट इन प्रॉपर, इनफैक्ट वो टाइम पे सिस्टम बहुत अच्छा था, अभी प्रॉपर नहीं है। जिसको हम लोग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं ना, बच्चे को स्कूल में मार्क्स लेके आए, ये वो टाइम पे टीचर्स वेर स्ट्रिक्ट। वो टाइम पे अलग ही था। आप याद करो, मैं आई एम टॉकिंग अबाउट मे बी हंड्रेड्स ऑफ इयर्स बैक। एजुकेशन में सिस्टमेटिक, वो सिस्टम को क्या बोलते थे वो टाइम पे? एजुकेशन को क्या बोलते थे? हाँ, यू आर नियर टू दैट। आश्रम को क्या, वो सिस्टम को क्या बोलते थे? देयर वाज अ वर्ड फॉर दैट। यस, वो बच्चा उधर जाता था, आश्रम में रहता था, उसे क्या बोलते थे? वेरी गुड, पलाश गॉट इट, पीयूष ऑल्सो गॉट इट, गुरुकुल। गुरुकुल, वेरी गुड। तो दैट टाइम था गुरुकुल, गुरुकुल था। अभी जो आपका जो एजुकेशन सिस्टम है ना, सही, एवरीबॉडी गॉट इट नाउ, गुरुकुल। हम लोग का जो एजुकेशन सिस्टम है, जिसके ऊपर हम लोग बच्चों को तकलीफ देते हैं, वो क्या है मालूम है? और वो सिस्टम अगले 5-10 साल के बाद बंद हो जाएगा, बिकॉज आवर एजुकेशन सिस्टम इज बेस्ड ऑन मेमोराइज एंड गो एंड राइट इन द पेपर। आप पढ़ाई करो, याद रखो और पेपर में लिखो, याद रखे पेपर में लिखो। और बिकॉज ऑफ गूगल, because of everything on your fingertip, you want anything, you can just type and you will find everything about it। याद क्यों रखना है? एक जमाने में गूगल नहीं था, एक जमाने में डेटा नहीं सेव होता था, एक जमाने में इंफॉर्मेशन सेव नहीं होती थी, बुक्स को ढूंढना पड़ता था। वो बुक्स कहाँ मिल नहीं रहा है, बुक्स को ढूंढो, पूरा बुक पढ़ो तो कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगा आपको। आज जो भी चाहिए, यू जस्ट टाइप दैट इन गूगल, यू विल गेट एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन। You type nervous system, you'll get about nervous system. You type conscious mind, you'll get everything about conscious mind. So you type the thing and you'll get it. You type Gurukul, you'll get about Gurukul। एक जमाने में ऐसा नहीं था, इसके लिए उन्होंने बोला था याद रखो, याद रखो, याद रखो, यहाँ रखो। लेकिन अभी सब मेमोरी डेटा हो रहा है। तो ये स्कूलिंग सिस्टम का क्या फायदा? आगे चल के क्या होने वाला है? और हमारा स्कूल
हमारी जो स्कूलिंग सिस्टम है ना आज की, वो अंग्रेजों ने उस वक्त क्या बोला, वो अंग्रेज जाके उधर जाके बोला कि इंडियंस का जो स्कूलिंग सिस्टम है वो खतरनाक है, उसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, तो हमें उनका स्कूलिंग सिस्टम तोड़ना पड़ेगा। जब अंग्रेज लोग इंडिया में पहले आए तो उन्होंने गुरुकुल तोड़ा एंड दे क्रिएटेड स्कूलिंग सिस्टम जो आज तक हम लोग यूज कर रहा है। और वो स्कूल में वो क्या सिखाते हैं, याद रखो, उनको नौकर चाहिए थे, क्लर्क्स। उनको ऐसा आदमी चाहिए था जो याद रखे, कैलकुलेशन करे, हिस्ट्री को, मतलब अब मेरा काम, मेरा तो नौकर बन के रहे बस। और जो बड़ा बनने के लिए जो चीजें लगती है, आदमी को सक्सेसफुल होने के लिए जो चीजें लगती है, दैट इज क्रिएटिविटी, इनोवेशन, अलग सोचना, ये सारी चीजें उन्होंने स्कूल से निकाल के फेंक दी और सिर्फ उनको लिखा, ये बुक है पूरा मग अप करके जाने का, उधर लिखने का, दिस इज ट्रायंगल, दिस इज स्क्वायर, दिस इज रेक्टेंगल, दैट्स ऑल। और कोई चौथा शेप निकालोगे यू विल बी फेल्ड, तुम्हें निकाल के स्कूल से फेंक देंगे बाहर। मतलब सोचने का नहीं, मैं जो बोल रहा हूं वही करने का। और अनफॉर्चुनेटली आज तक वही चल रहा है। लेकिन मैं आपको एज अ पेरेंट बोल रहा हूं, आपके घर में आप बच्चों को सिखाओ, मतलब स्कूल में सिखाने दो उसको, बिकॉज स्कूल का जो चीज है वो जरूरी है, आई एम नॉट सेइंग नो। स्कूल में जो सिस्टम हो रहा है, आपको जो सर्टिफिकेट चाहिए, आपका बच्चा ग्रेजुएट होना चाहिए, इंजीनियर होना चाहिए, डॉक्टर होना चाहिए, जरूरी है, आई एम नॉट सेइंग नो, वो भी जरूरी है। लेकिन आपको एट द सेम टाइम वो बच्चे को कुछ अलग भी घर पे सिखाना पड़ेगा, क्रिएटिविटी, मेंटल टफनेस, बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आके बोलूंगा आगे आई एम गोइंग टू टेल यू, यू हैव टू टीच हिम लॉट ऑफ थिंग्स एट होम। स्कूल सिखा रहा है अच्छी बात है, लेकिन आपको घर पे भी उसको सिखाना पड़ेगा, घर पे भी स्कूल होना चाहिए। और वो स्कूल के हेडमास्टर है माँ बाप, माँ बाप। और आप वो स्कूल के टीचर हो, जो उसका घर पे स्कूल होगा, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? आई एम कमिंग टू दैट। एंड डोंट बॉदर योर चाइल्ड कि तुम्हें ये आता नहीं, तुम्हें एग्जाम में मार्क कम मिले, प्लीज डोंट डू दैट, उसका कोई मतलब नहीं है, इट्स ओके। शायद वो, और आज देखोगे जो टॉप 500 लोग है उसमें से 498 लोग जो सक्सेसफुल है, 498 लोग को फॉर्मल एजुकेशन नहीं है। धीरूभाई अंबानी, you take names of Bill Gates, Steve Jobs, सचिन तेंदुलकर, लता मंगेशकर। जरूरी नहीं, ऑफ कोर्स एजुकेशन चाहिए, आई एम नॉट अगेंस्ट एजुकेशन, लेकिन दैट इज नॉट एवरीथिंग, दैट इज नॉट एवरीथिंग। थॉमस एडिसन, 3-4 साल की उम्र में उसको स्कूल से फेंक दिया बाहर, एंड ही बिकेम थॉमस एडिसन। तो स्कूल्स आर रिक्वायर्ड, बट स्कूल्स आर नॉट इनफ। आपको उसको घर पे भी सिखाना पड़ेगा, नहीं तो कुछ आगे जाएगा नहीं, गाड़ी जाएगा नहीं आगे। तो वो क्या होगा आगे मैं बताऊंगा, लेट अस गो अहेड। तो ये गुरुकुल जो है, तो गुरु, अभी जैसे आपने ये साहब का नाम सुना होगा, सदगुरु। सदगुरु, इनके बहुत सारे वीडियो भी आते हैं, और ही इज अ पर्सन हु टॉक्स अबाउट स्पिरिचुअलिटी। तो सदगुरु जो है, उन्होंने स्कूल बनाया अपने, उनका जो बैंगलोर में उनका जो आश्रम है, वहां स्कूल है। वो स्कूल में सब्जेक्ट कौन से मैं आपको बताता हूँ, उसके सब्जेक्ट्स आप देखो क्या है। योगा सिखाते हैं, मार्शल आर्ट सिखाते हैं, संस्कृत, क्योंकि वो अपना पुराने वेदास को पढ़ना चाहिए, ही शुड नॉट फॉरगेट संस्कृत। इंग्लिश भी चाहिए, बिकॉज दैट इज द लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। आज दुनिया में कहीं जाओ इंग्लिश बोला जाता है, तो आपको इंग्लिश आना चाहिए। कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आना चाहिए, और डांस आना चाहिए। तो योगा से आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, मार्शल आर्ट से आप अपने आप को डिफेंड कर पाओगे अगर कोई अटैक करेगा, संस्कृत से आप अपने पुराने वेदास पढ़ सकोगे, इंग्लिश लैंग्वेज में आप किसी से भी बात कर पाओगे। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और डांस, डांस एक एक्सरसाइज फॉर्म है, और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, अगर आप डिप्रेस हो गए, आपको दुख आ गया, बहुत सारा टेंशन आ गया, तो म्यूजिक आपको उससे बाहर निकालेगा। क्योंकि आप कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जानते हो और आप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करने लगोगे, तो आपका सारा टेंशन इवापोरेट हो जाएगा। आप में से कोई अगर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाता है, उसको ये मालूम होगा कि व्हेन ही और लिसन टू द म्यूजिक, इमीडिएटली वी फॉरगेट एवरीथिंग। सो दैट इज, दीज आर द कोर्सेस ही टीचेस, ही डजंट टीच एनीथिंग एल्स, एंड दिस इज गोइंग टू बी फ्यूचर, बिलीव मी। ये धीरे 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 स्कूल में आएगा। अभी जो स्कूल में सिखाना दो उनको, लेकिन आपको बच्चों के साथ ये सब चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। ये सारी चीजें आपके बच्चों को आएंगी तो अच्छा है, इट इज गुड फॉर हिम। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का क्लास लगाओ, ही शुड लर्न दैट। यू आस्क हिम तुम्हें क्या अच्छा लगता है, जबरदस्ती नहीं। उसको एक भी इंस्ट्रूमेंट आ गया ना, हिज लाइफ विल बी सो हैप्पी। आगे चल के कभी भी तकलीफ में आएगा, वो इंस्ट्रूमेंट बजाएगा, विल बी हैप्पी। और आपका बच्चा हैप्पी होना चाहिए, मैं चाहता हूं। और हैप्पीनेस पैसे का मोहताज नहीं है। सुशांत सिंह, पता नहीं गॉड ओनली नोज क्या हुआ, लेकिन ही हैड लॉट्स ऑफ मनी, व्हाट ही डिड टू हिमसेल्फ। सीसीडी के ओनर, कैफे कॉफी डे का ओनर, 10,000 करोड़, क्या हुआ? So money is not everything. So happiness is not dependent on money. Happiness is happiness. Money can give you pleasure. You can buy things which will give you pleasure, but happiness comes from within. और वो आपके बच्चे को सिखाना चाहिए कि हैप्पीनेस क्या है। और द बेस्ट वे टू गेट हैप्पीनेस इज मेक समबडी एल्स हैप्पी। किसी के आंसू पोछो तो खुद को आंसू आएंगे नहीं, किसी के आंसू पोछेंगे तो खुद को आंसू आए तो खुशी के आंसू आएंगे। और ये बच्चों को सिखाना चाहिए कि यू हैव टू हेल्प पीपल।
तकलीफ में कोई है तो उसको जाके हेल्प कर, एंड दैट चाइल्ड विल ऑलवेज बी हैप्पी बिकॉज गॉड विल बी पुटिंग हिज हैंड ऑन हिज हेड, और वो बच्चे को भी इतना अच्छा लगेगा, धीरे धीरे उसकी वो आदत हो जाएगी कि आई वांट टू हेल्प पीपल, एंड इफ यू हेल्प अदर्स गॉड हेल्प्स यू, बिकॉज इफ यू स्टार्ट हेल्पिंग योर ओन सेल्फ, गॉड सेज ठीक है खुद को हेल्प कर रहा है कर लो, मैं क्यों हूं बीच में, लेकिन जब मैं दूसरे को हेल्प करना चालू करता हूं, भगवान बोलता है यार ये आदमी दूसरे को हेल्प कर रहा है, अभी इसको हेल्प कौन करेगा, तो मुझे करना पड़ेगा, देन गॉड हेल्प्स, एंड दीस काइंड्स ऑफ पीपल ऑलवेज सक्सीड इन लाइफ. ओके, लेट मी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. हम लोग एंड में बात करेंगे, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन राइट डाउन एंड वी कैन डिस्कस. जैसे एक मूवी था त्रिशूल, त्रिशूल एक मूवी थी, अमिताभ बच्चन, वहीदा रहमान, संजू कुमार. आप में से कितने लोगों ने देखी है? प्लीज टाइप यस इफ यू हैव सीन द मूवी, तो मुझे समझ में आएगा कि आई एम टॉकिंग टू द ऑडियंस हु हैज, वो 1978 में आई थी वो एक्चुअली. अरे आप कोई देखा नहीं लगता है किसी ने? कोई बात नहीं, यू आर नॉट सीन द मूवी, ओके. इन दैट मूवी देयर इज वन, इफ यू कैन वॉच इट अगेन, आई थिंक यू विल गेट लॉट ऑफ learnings from that movie. But in that movie there is one scene where Wahida Rehman, the mother of Amitabh Bachchan, is on the deathbed, she's about to die, and Amitabh Bachchan comes from there and he has got tears in his eyes. तो वहीदा रहमान उसे क्या बोलती है, what a message given by any mother to the child. She says कि मैं तुम्हारे आंखों में आंसू नहीं, हिम्मत देखना चाहती हूँ. आई डोंट वांट टू सी टीयर्स इन योर आईज, आई वांट टू सी करेज इन योर आईज. मैं तुम्हारे आंखों में आंसू नहीं, हिम्मत देखना चाहती हूँ. और वो आगे बोलती है ये दुनिया बड़ी संग दिल है, ये दुनिया बड़ी संग दिल है. संग दिल मतलब स्टोन हार्टेड, दिस वर्ड इज स्टोन हार्टेड, दिस वर्ड इज वेरी टफ, क्रूएल. ये दुनिया बड़ी संग दिल है, वो कमजोर को जीने नहीं देती. इट विल नॉट अलाउ अ वीक पर्सन टू बी अलाइव. ये दुनिया बड़ी संगदिल है, वो कमजोर को जीने नहीं देती. वादा करो तुम जिंदगी में कभी कमजोर मत बनना, जिंदगी में कभी कमजोर नहीं बनोगे. दैट इज व्हाट शी टेक्स द प्रॉमिस फ्रॉम हिम. आप ये पिक्चर देखो, मैं रिक्वेस्ट करूंगा. वो जो माँ का जो एक गाना है, वहीदा रहमान ने गाना अपने बच्चे के ऊपर गाया है कि मैं तुझे दूध ना बख्शूंगी वगैरह वगैरह, तो आप उसके वर्डिंग भी बहुत जबरदस्त है. लेकिन मैं ये, दिस इज द मैसेज अ मदर इज गिविंग द चाइल्ड कि मैं तुम्हें, आई वांट टू सी करेज इन योर आईज नॉट टीयर्स. और ये दुनिया बड़ी टफ है, तुम कभी वीक मत बनना, कभी वीक. वहां लफड़ा चल रहा है, तू भाग जा वहां से मत, वो कुछ बोला तू क्यों उसे उल्टा बोल रहा है, निकल जा वहां से, क्यों, मेक हिम टफ. आई एम नॉट सेइंग यू शुड फाइट विद एवरीबॉडी, बट यू शुड बी टफ. Because we have a mechanism which God has given us, we have a mechanism inside us that is fight or flight. We choose on every step, we choose whether I should fight or flight. भाग लो या भागो, भाग लो या भागो या भाग लो या भाग लो, ऐसा ही बोल सकते हैं. तो वेदर नो हाउ यू आर ब्रिंगिंग द चाइल्ड अप, ही शुड बी अ फाइटर. फाइटर मीन किसी को जाके कान की आवाज करना चाहिए सिचुएशन से, वे he should fight and that mother teaches the child. और कुछ मूवीज है जो मैं आपको बताऊंगा. दूसरी मूवी है दंगल. वो दंगल मूवी आपने देखनी चाहिए. आप देखोगे उसमें उसके पिताजी उसको जबरदस्त, आपने देखा होगा, आई एम श्योर लॉट ऑफ पीपल मस्ट हैव सीन दैट मूवी. उसमें उसके पिताजी एकदम रूथलेस होते हैं, रूथलेस. क्यों? बिकॉज वो बच्चे का स्ट्रेंथ जानता है, उसको समझ में आता है मेरा बच्चा जो है, दोनों डॉटर्स जो है वो अच्छी, they will become good racers and they can actually get gold medal from, that was his objective to actually there was some internet disturbance, now it will be clear, now it will be clear. Is it okay now? नाउ इट इज क्लियर. बीच में थोड़ा इंटरनेट का इशू हुआ था. तो दंगल मूवी भी आपने देखना चाहिए, तारे जमी पे देखना चाहिए, तारे जमी पे. आपने देखा ही होगा, बट आई विल से, एंड इनफैक्ट एज मदर एंड फादर मैं तो आपको रिक्वेस्ट करूंगा, दंगल या तारे जमी पे ऐसी मूवी आपने महीने में एक बार देखनी चाहिए, महीने में एक बार देखनी चाहिए. बिकॉज दैट विल अगेन नो, आपको वो जो मैसेज है उसका रिवाइंड हो जाएगा वापस. तो दंगल भी है, उसका किस तरह से वो अपने बच्चों को डिसिप्लिन्ड में ऊपर लेके आता है. उनको वो बच्चे उसको गाली देते हैं कि बाप है क्या है, शैतान है, लेकिन जब आगे जाते हैं, क्रांतिवीर भी, बहुत सारी मूवीज है, यू आर राइट, क्रांतिवीर भी है.
दूसरा है खलनायक। खलनायक पिक्चर आपने देखा होगा संजय दत्त का, उसमें आनंद बख्शी जो है उन्होंने गाना लिखा है 10 मिनट का, वो गाना ज्यादा हिट नहीं हुआ, वो जगजीत सिंह ने गाया है, और वो गाना आप सुनोगे तो आपके आंखों में आंसू आ जाएंगे। वो गाना है ऐ माँ तुझे सलाम, ऐ माँ तुझे सलाम, अपने बच्चे तुझको प्यारे, रावण हो या राम। ऐ माँ तुझे सलाम, अपने बच्चे तुझको प्यारे, रावण हो या राम। 10 मिनट का गाना है माँ के ऊपर, आप सुनना वो गाना, व्हाट इज मदर। और उसमें एक टाइटल सॉन्ग है खलनायक, नायक नहीं हूं खलनायक हूं मैं, जुल्मी बड़ा दुखदायक हूं मैं, इस तरह का खलनायक का टाइटल सॉन्ग है। Chichore also was absolutely, Chichore also a good film where he was taught how to be tough. So खलनायक में जो वर्डिंग है आपको बताऊं, एक ऐसा है वर्डिंग कि बचपन ने लिखी कहानी मेरी, बचपन ने लिखी कहानी मेरी, कैसे बदलती जवानी मेरी। आप समझ रहे ना, मतलब बच्चे की जो जवानी है ये उसका पूरा लाइफ है, उसकी कहानी माँ बाप बचपन में लिखते हैं। आपका बच्चा आगे चल के क्या होगा यू डोंट नो, यू मस्ट बी थिंकिंग मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन यू आर एक्चुअली राइटिंग हिज फेट, उसकी किस्मत आप लिख रहे हो। जिस तरह से आप उसको पेरेंट कर रहे हो, जिस तरह से आप उसके साथ बात कर रहे हो, उसको बड़ा कर रहे हो, यू आर एक्चुअली राइटिंग इज फ्यूचर। बचपन ने लिखी कहानी मेरी, कैसे बदलती जवानी मेरी, सारा समंदर मेरे पास है, सारा समंदर मेरे पास है, एक बूंद पानी, एक बूंद पानी मेरी प्यास है, ऐसा वो गाना था। मतलब उसका सब कुछ है लेकिन उसको पास प्यार नहीं इस तरह का। लेट इट बी असाइड, बट व्हाट आई वांट टू कन्वे, व्हेन your whatever you will be in your life will be decided before you are age 10, and by the time a child reaches age 10, बच्चा जब तक 10th बर्थडे का केक नहीं काटता, 10th बर्थडे का केक नहीं काटता, वो कम से कम, यू विल बी शॉक टू लिसन टू दिस व्हाट आई एम सेइंग, 3 लाख टाइम्स वो सुनता है क्या नहीं करना चाहिए, नो 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 नो, डोंट डू दिस, डोंट गो देयर, डोंट वॉच दिस, डोंट, इफ यू डू दिस विल फेल, ऐसा करेंगे तो वो अंकल तुम्हें मारेंगे, वो करेगा वो तुम्हें काट, नेगेटिव उसके माइंड में घुसाड़ देते हैं हम लोग, उसको डरा देते हैं, उसको वीक कर देते हैं, उसकी पूरे उसका अंदर का जो हिम्मत है उसके टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। आगे क्या करेगा वो, इंटरव्यू में जाएगा तो क्या करेगा, डरेगा, स्टेज पे जाके कोई गाना गाओ डरेगा, एग्जाम आखिर में डर गया, माँ बाप डरते, अरे तू 10th में है पढ़ाई कर, 10th कितना, अरे छोड़ ना हो जाएगा, काहे टेंशन क्यों ले रहा है, बच्चे को आपने कॉन्फिडेंस देना है कि उसको डराना है। लेकिन हम लोग उसको निगेटिव देते हो, प्लीज बच्चे से निगेटिव मत बोलो, खाना खा नहीं तो बुआ आ जाएगा, ये कर नहीं तो डॉगी तुम्हें काटेगा, प्लीज आप उससे, आपको मालूम नहीं आप क्या कर रहे हो, तो उसका उसका जो डर है लाइफ में, आपको मालूम है माँ जो बच्चों को सबसे प्यार करती है, माँ से ज्यादा बच्चे को कोई प्यार नहीं कर सकता। इसके लिए मैसेज जो शिव प्रकाश जो उन्होंने डाला था कि 90%, 97% ऑफ द मदर्स, 97% ऑफ द मदर्स आर बिहाइंड देयर सन्स और डॉटर्स फेल्यूर, ओनली 3% मदर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सक्सेस ऑफ चाइल्ड। ऑफकोर्स फादर का भी हाथ है, लेकिन मदर इज, चाइल्ड इज अ पार्ट ऑफ मदर्स बॉडी, दो जिस्म एक जान। माँ सबसे बड़ी चीज है, सबसे बड़ा भगवान माँ है, और बच्चे के लिए भी माँ भी सबसे बड़ी चीज है, जो माँ बोलेगी वही होगा। तो माँ के ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसका मतलब ऐसा नहीं कि पिताजी लोग बोलेंगे चलो अपना काम हो गया, माँ के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी, पिताजी के ऊपर भी, ही कैन नॉट टॉक समथिंग डिफरेंट, माँ जो उसको जिस तरह से पेरेंट कर रही है उसी तरह पिताजी ने भी उसको सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन मैं आपको बोलूंगा कि बच्चे को आप पॉजिटिव री दे दो, ऊपर मत चढ़, गिर जाएगा, उससे आप ये बोल सकते हो नीचे उतर, इट्स ओके, गिर जाएगा क्यों, पढ़ाई कर नहीं तो फेल हो जाएगा, ये बोल सकते हो पढ़ाई कर और नंबर 1 आ जा, ये क्यों पढ़ाई करने तो फिर, why you are threatening him, we threaten him because we cannot control the child, that is why we threaten him। ऐसा मत करो, you are damaging the child's life, वो पूरा लाइफ उसका खत्म हो जाएगा, तकलीफ में जाएगा बच्चा। कदम एक नई जंग है, मेरी जंग पिक्चर का टाइटल सॉन्ग आप सुनो, वापस आनंद बख्शी साहब ने लिखा है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जीत जाएंगे हम तू अगर संग है, और माँ अगर संग है तो आदमी हर एक जंग जीत जाएगा। लेकिन माँ ने बचपन से उसको सिखाना चाहिए कि यू कैन डू इट। जब थॉमस एडिसन 3 साल का था, थॉमस एडिसन को सुनाई नहीं दे रहा था बराबर, ही वॉज पार्शियली डेफ, बहरा था आदमी, बच्चा, तो स्कूल में जाता था, टीचर क्या बोल रहे समझ में नहीं आ रहा है, वेरी इंटेलिजेंट, लेकिन टीचर क्या बोल रहे समझ में नहीं आ रहा है, तो उसके टीचर ने चिट्ठी लिखा, उसके टीचर ने वो चिट्ठी लिख के भेजा कि योर टॉमी इज नो गुड, डोंट सेंड हिम टू स्कूल, योर टॉमी इज नो गुड, डोंट सेंड हिम टू स्कूल। अभी ये चिट्ठी, आपका बच्चा अगर 4-5 साल का बच्चा स्कूल से ये चिट्ठी लेके आता है,
यहाँ जितने भी माताएं देख रही है, मैं उनको पूछना चाहता हूँ, ये सब आप खुद को दे दो, अगर आपका बच्चा एक चिट्ठी लेके आता है तो हम लोग का रिएक्शन क्या होगा? मोस्ट ऑफ द मदर्स, 97% ऑफ द मदर्स बच्चे को ब्लेम करेंगी। मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, मोस्ट ऑफ द मदर्स। अगर आप 3% में है कि 97% में, आप अपने आप को पूछो। हम लोग बोलते हैं तेने कुछ किया होगा, तुम्हारी कुछ गलती होगी। बच्चा बोलता होगा यार क्या हो रहा है, मैंने कुछ नहीं किया। वो थॉमस एडिसन क्या सोचता होगा अगर उसके माँ ने बोलता कि तू ही गलत है। उसकी माँ ने वो चिट्ठी लिया, पढ़ा और उधर बाजू में रख दिया। तो थॉमस एडिसन ने पूछा कि मम्मी उसमें क्या लिखा है? तो उसकी मम्मी ने टाला, नहीं छोड़, कुछ नहीं, नहीं बताओ। तो उसकी माँ ने क्या बोला कि उसने बोला कि वो स्कूल में लिखा है कि योर टॉमी सो गुड, डोंट सेंड हिम टू स्कूल, ही इज सो इंटेलिजेंट, ही डजंट नीड स्कूल। और उसकी माँ ने बोला आज के बाद मैं तुम्हें सिखाऊंगी और एक दिन दुनिया तुम्हें स्कूल में सीखेगी व्हाट इज थॉमस एडिसन। और वो है माँ, 3% वाली माँ, शिवाजी महाराज की माता जी, वो है माँ। तू करेगा क्या? थे उनके पिताजी तो मुलाजिम थे उनके। शिवाजी महाराज की माँ ने उनको बोला तू कर, तू यू हैव टू डू दिस, क्योंकि ये जो जनता पे तकलीफ हो रहा है ना उनको, उसके लिए। नहीं तो हम तो खुश है, हमारे पास तो पैसा है, सब कुछ है, लेकिन दुनिया के ऊपर जो जुल्म हो रहा है उसको रोकना है और तुम्हें ये करना है। और वो होती माँ। हर एक बच्चा, सक्सेसफुल बच्चे के पीछे माँ। और आपके ऊपर जो भी माताएं देख रही है, आपके ऊपर वो है, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक योर चाइल्ड वेरी वेरी सक्सेसफुल इन ऑल द। अभी व्हाट इज सक्सेस, ये सवाल भी है कि वो सक्सेस क्या होता है। हम लोग बोलते हैं ना आदमी सक्सेसफुल होना चाहिए। सो आई वुड लाइक टू नो, आप हर एक, आप में से सबको लगता होगा कि आपका बच्चा सक्सेसफुल हो, तो व्हाट डू यू मीन बाय सक्सेस? कैन यू टाइप कि ये चीज अगर उसके पास है तो वो सक्सेसफुल है? प्लीज टाइप, क्योंकि आपका बच्चा सक्सेसफुल होना चाहिए। ऐसे हर एक बच्चे को, माता पिता को लगता है कि माय चाइल्ड शुड बी सक्सेसफुल, बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सक्सेस? क्या होगा तो हम बोलेंगे सक्सेसफुल है? क्वालिटी मतलब क्या? हाउ कैन वी डिसाइड कि ये आदमी सक्सेसफुल हो गया, ये आदमी के पास ये है इसके लिए सक्सेसफुल है? व्हाट इज दैट बैरोमीटर ऑफ सक्सेस? Happy and satisfied in his life, correct. Happy and satisfied, you are very right. Health, wealth, family, Ishita is writing, very good. Health, wealth, family. Success what your child desires and wants to achieve. Okay, good human होना चाहिए, बराबर है। Most of you have given correct answer. If she learns how to live in the world, perfect, मतलब relationship, गुड ह्यूमन बीइंग। सो आई विल टेल यू एग्जैक्टली, आप समझ लो क्या है। और आपके बच्चे को वो 4 चीजें आपको देनी है। वो है, हिज हेल्थ शुड बी गुड, perfect, how it treats people, maintain relationship, I am coming to that. दूसरा, he should have good relationships with people, his family and friends, he should have good relationships, he should not be fighting with everybody. So health, relationship, and then it is not in that sequence, but wealth and career. So health, wealth, relationship and career, these are the 4 things which will decide success of your child. आप अगर अपने बच्चे को खुश देखना चाहते हो तो उसका हेल्थ के बारे में सोचो, रिलेशनशिप, मयूरी गुड बिहेवियर मतलब उसका रिलेशनशिप कैसा है लोगों से, वो किस तरह से लोगों से पेश आता है, वो जरूरी है। उसके बाद वेल्थ भी जरूरी है, ही शुड बी रिच, उसमें कोई गलत बात नहीं है। ही शुड बी रिच, ही शुड अर्न हिज मनी विद ऑनेस्टी एंड ही शुड हैव अ गुड करियर। उसका जो करियर है वो भी एकदम थ्राइविंग होना चाहिए। लेकिन पैसा है लेकिन करियर नहीं है तो भी प्रॉब्लम है। अमित कुमार के पास पैसा है, किशोर कुमार का बेटा, उसके पास पैसा तो है लेकिन करियर नहीं है। ऑफकोर्स ही इज अ वेरी गुड सिंगर, लेकिन करियर नहीं है, तो वो उनको मजा नहीं आता। पैसे के साथ करियर भी हो। एनीवे, दीज आर द 4 थिंग्स, हेल्थ, वेल्थ, करियर और रिलेशनशिप। आज उसके ऊपर ज्यादा बात नहीं करेंगे, विल गो टू द नेक्स्ट पॉइंट जो मुझे आज जो कवर करना है। लेट मी कवर दैट नाउ। स्कूल्स, हम लोग का पूरा फोकस स्कूल पे है। स्कूल में तुम्हें अच्छा मार्क निकालना चाहिए, स्कूल में तुम नंबर आना चाहिए। इंटरनेट कनेक्शन बीच में अनस्टेबल होगा तो बीच बीच में आवाज हो सकता है, तो आई एम सॉरी अबाउट दैट। ओके, तो स्कूल्स का देखते हैं। देयर इज समथिंग कॉल्ड, यू मस्ट हैव हर्ड, कॉन्शियस माइंड। तो स्कूल्स, दे टॉक अबाउट कॉन्शियस माइंड, they teach to the conscious mind because they talk logic. Schools will only talk logic. School will talk about logic. And if you want magic in your kids life, that is your responsibility, which I will tell you in the next slide. But conscious mind is about logic. 1 plus 1 is
2 is 11 that requires creativity, innovation, thinking out of the box. ये स्कूल में नहीं बताते, बाकी सब अधूरे है बस। अगर कोई मैथ्स में अच्छा है तो वो सबसे अच्छा है, लेकिन कोई म्यूजिक में अच्छा, उसको पूछते ही नहीं, वो मालूम ही नहीं वो अच्छा गाता है, बिकॉज यू मे बी वॉट एवर, तुम्हें मैथ्स नहीं आता तुम बुरे हो। तो बच्चे का सेल्फ कॉन्फिडेंस कितना खतरनाक डैमेज होता होगा आप सोचो, क्योंकि भगवान ने हर एक आदमी को यूनिक बनाया है। आप देखो भगवान हम लोग को बनाता है तो भगवान जो भी चीज बनाएगा वो अच्छी ही होगी ना। भगवान हर एक को बनाया वो अच्छा ही बनाया है। अभी देखो ये थंब इम्प्रेशन है, थंब इम्प्रेशन, ये जो थंब इम्प्रेशन है दुनिया में 800 करोड़ लोग है, किसी का भी थंब इम्प्रेशन सेम नहीं है। 800 करोड़ पीपल डिफरेंट थंब इम्प्रेशन, वैसा एवरी चाइल्ड इज डिफरेंट एंड एवरी चाइल्ड कम्स विद समथिंग इन हिम। भगवान उसको एक दे के भेजता है, जा भाई ये तू कर, लेकिन पढ़ाई कर, शायद वो कुछ और चीज के लिए बनाए। वो माँ बाप का काम है ढूंढना, उसको ऑब्जर्व करना और फाइंड आउट करना। जैसे यू आर गुरुकुल फॉर हिम। गुरुकुल में क्या होता था, बच्चा जाके रहता था और वहां के टीचर उसको ऑब्जर्व करते थे कि ये किस चीज में अच्छा है, ये आर्ट्स में अच्छा है, ड्राइंग में अच्छा है, पेंटिंग में अच्छा है, स्विमिंग में अच्छा है, सिंगिंग में अच्छा है, किस में अच्छा, उसी में उसको आगे लेके जाना है। बिकॉज जो चीज आपको अच्छी लगती है आप उसमें सक्सेसफुल होगे। Things which you love, you will become successful in that. Things which you don't know, suppose your father is doctor and you are forced to become doctor, you can never be the best doctor. You can only survive. You will earn money, but you are not happy. But you want to be a musician, your father said नहीं तुमको डॉक्टर बनना ही है because I have a dispensary. लेकिन if you become musician, you may fail. I'm not saying success आएगा, you may fail, but you will succeed. But at least the child will be happy. वो कर रहा है जो उसे करना है। और स्कूल में क्या होता है, ओनली एक ही लक्ष्य, मार्क्स। स्कूल में लगता है क्या मालूम है, लक्ष्य होना चाहिए मार्क्स, मार्क्स अच्छा आने चाहिए। अगर लक्ष्य मार्क्स है तो उनको लगता है लक्ष्मी आएगी, क्योंकि लक्ष्य और लक्ष्मी का कनेक्शन है। लेकिन लक्ष्य वो बच्चा जिस चीज के लिए पैदा हुआ है, उसके भगवान ने जो उसको क्वालिटी देके भेजा है, वो चीज में उसने लक्ष्य बनाना चाहिए, तभी उसके बाद लक्ष्मी आएगी। स्कूल में आईक्यू की बात होगी, school will talk about IQ only. What is the full form of this? I am sure everybody knows. Can you type, some of you, what is IQ? इंटेलिजेंट क्वेश्चन, पूर्णिमा, राइट, इंटेलिजेंट क्वेश्चन। आप देखो अभी मैं जो बोलने जा रहा हूँ बहुत ध्यान से आप समझ लो मैं क्या बोल रहा हूँ। स्कूल विल ओनली बी बॉदर्ड अबाउट IQ, IQ, ओके। तो नेक्स्ट स्लाइड आई विल टेल यू व्हाट एग्जैक्टली गोज रॉन्ग विद IQ। तो IQ स्कूल में बात होगी कंपटीशन की, यू आर नंबर 1, यू आर नंबर 2, यू आर नंबर 3, दैट इज द मोस्ट डैमेजिंग। आपको मालूम है अगर स्कूल में क्लास में 50 बच्चे हैं, नंबर 1 एक बच्चा है, 49 बच्चों का कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ जाती है, तू नंबर 1 नहीं है, ये देख कितना होशियार है। अरे होशियार मैथ्स में, मतलब बाकी 49 पागल है। तो उसके स्कूल में उसके ऊपर हैमर किया जाएगा, यू आर नथिंग, ये देख फर्स्ट नंबर कितना स्मार्ट है। लेकिन आपको एज अ मदर एंड फादर यू हैव टू टेल हिम यू आर द बेस्ट, यू हैव टू कंटिन्यूअसली बूस्ट हिज कॉन्फिडेंस, यू आर द बेस्ट। खाली हमें ढूंढना है कि तू किस चीज में बेस्ट है और उसके ऊपर तुम करोगे, ऐसा कुछ काम करोगे लोगों का भला हो जाएगा। ये माँ बाप ने उसको घर पे आने के बाद बोलना चाहिए कि स्कूल उसको उसके कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ा देगा। स्कूल में नंबर 1 वही छाना है, बाकी सब लोग गलत है। ये स्कूल का असूल है, कॉम्पिटिशन। बस आप घर पे भी हम लोग क्या करते हैं, तेरा भाई देख, तेरी सिस्टर देख कैसा बिहेव करती है, क्यों क्यों ऐसा करना है। इवन ट्विंस आर डिफरेंट, ट्विंस है, अलग अलग बिहेवियर के होते हैं, क्यों हम लोग कंपेयर कर रहे हैं किसी को। कंपैरिजन करना आई डोंट थिंक इट्स द राइट थिंग। कंपैरिजन इज द थीफ ऑफ जॉय, कंपैरिजन इज द थीफ ऑफ जॉय, चोर है, खुशी का चोर है, खुशी निकाल लेगा, खुशी चोरी करेगा कंपैरिजन से। अमिताभ बच्चन अपनी जगह है, विनोद खन्ना अपनी जगह है, सचिन तेंदुलकर अपनी जगह है, लारा अपनी जगह है, दोनों अच्छे हैं, कंपैरिजन क्यों करूं मैं। देवदास, दिलीप कौर ने अच्छा किया था, शाहरुख ने अच्छा नहीं किया, क्यों, क्योंकि हर एक अपने अपनी जगह। व्हाई वी शुड कंपेयर दैट, वी शुड एंजॉय रादर देन व्हेन वी स्टार्ट कंपेयरिंग we are finding faults, we are not happy when we compare with somebody, but both of you are good, why not? Then आप देखोगे स्कूल में होगा कंपैरिजन, कंटिन्यूअस कंपैरिजन होगा स्कूल में, और हम लोग घर पे भी वो करते हैं, वैसा मैं भी करूं क्या, बच्चों को लगता है मेरा फ्रेंड सिगरेट पीता है मैं भी पीऊं क्या, पीयर इन्फ्लुएंस। अभी बच्चा उसका जो पता नहीं किससे दोस्ती होगी, वो ऊपर से लिखा आता है किसका किसके साथ कनेक्शन होगा एज अ फ्रेंड। तो घर में जो संस्कार है वो स्ट्रांग होने चाहिए,
क्योंकि उसको ऐसा बच्चा मिल सकता है जो उसको कहीं भी लेके जाएगा, कुछ भी अगर उसको वो चाहता है फ्रेंड करके, तो ही विल डू वॉट एवर ही इज डूइंग। तो स्कूल्स अच्छा है, लेकिन अगर आपने उसको घर पे जो अलग स्कूल नहीं खोला तो प्रॉब्लम है। तो क्या है, अब लोग अभी देखते हैं कि घर पे क्या करना चाहिए हमको, ये स्कूल कर रही है, क्या सीखना चाहिए अगर जिंदगी में आगे आना है। जैसे मैंने आपको बोला, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप और करियर में सक्सेस पाना है, तो बच्चे को खाली स्कूल से काम नहीं चलेगा। स्कूल में जो नंबर 1 है, कहीं आप जॉब कर रहा है और वो कंपनी का जो ओनर है वो कभी कॉलेज गया ही नहीं। आप चेक करो, ऐसे बहुत सारे केसेस है, स्कूल में नंबर 1, हमेशा नंबर 1 था, कॉलेज में नंबर 1 था, कहीं जॉब कर रहा है वो, और वो कंपनी का मालिक अनपढ़ है। इसका मतलब ये नहीं कि अनपढ़ रहो, लेकिन आई एम टेलिंग यू, खाली पढ़ाई से नहीं होता, वो मालिक के पास और कुछ है। वो क्या है, वो कंपनी का ओनर के पास आईक्यू नहीं है, तो क्या है, लेट अस डिस्कस दैट। तो बच्चों को सिखाना है सबकॉन्शियस माइंड, क्योंकि सक्सेस कॉन्शियस माइंड से नहीं आता, सक्सेस सिर्फ सबकॉन्शियस माइंड से आता है। और हमारे स्कूल्स में, गुरुकुल में सिखाते थे सबकॉन्शियस माइंड क्या है। आज लंदन में कुछ स्कूल में चालू हुआ है कि व्हाट इज सबकॉन्शियस माइंड, व्हाट इज क्रिएटिविटी, व्हाट इज इनोवेशन। इंडिया में अभी तक नहीं हुआ है, इसको बाजू में रखता है, छोड़, डोंट यूज योर ब्रेन्स, मैं जो बोल रहा हूं वो कर, डोंट री इन्वेंट द व्हील। बस यही बोला जाता है स्कूल में, अपना दिमाग मत लगा, जो बुक में दिया है वही तू लिख आंसर में, तो यू आर आउट। I will just give you 0 marks, बिकॉज वो जो बुक में लिखा शायद रॉन्ग हो सकता है। आज भी स्कूल में सिखाते हैं कि सूरज ईस्ट में उगता है, आज भी स्कूल में सिखाते हैं सन राइजेस फ्रॉम द, सन इज स्टेशनरी, अर्थ इज मूविंग। जब पहली बार ये आदमी, अमेरिका में एक आदमी था जिसने ये बोला कि सन इज स्टेशनरी, अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड सन, हु वाज दैट पर्सन? कैन समबडी टेल मी द नेम ऑफ दैट पर्सन? ही वाज पुट बिहाइंड बार्स, ही वाज रिडिक्यूल्ड, और बाद में उनको समझ में आ गए तो सही बोल रहा था, हम लोग पागल थे, फिर उसको सॉरी बोला और उसको बहुत बड़ा इंसान बन गया वो। कैन समबडी टेल मी व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट पर्सन हु सेड सन इज स्टेशनरी, वी आर रिवॉल्विंग, एंड एवरीबॉडी लाइक उसको इतना क्रिटिसाइज किया, उसका जिंदगी हराम कर दिया लोगों ने, बिकॉज ही वाज थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स। एनीबॉडी नोज द नेम? नहीं, शेक्सपियर नहीं, वो ही वाज इनटू लिटरेचर, ये थोड़ा साइंटिफिक चीज है। नहीं, न्यूटन भी नहीं, ये जो गूगल है ना, गूगल, उसका सिमिलर उसका नाम है। एनीवे, गैलीलियो, गैलीलियो, गैलीलियो वाज द पर्सन, आप पढ़ो उसका इंटरनेट पे, ही वाज सच अ स्मार्ट फेलो, लेकिन जब उसने ये बोला, पूरा दुनिया ने उसको मतलब ऐसा सोचा कि पागल है, इसको कुछ अक्ल नहीं, कुछ भी बक रहा है ऐसा। इनफैक्ट आज भी आप सोचो ना, किसी को बोलो अर्थ गोल है, अर्थ इज राउंड, पब्लिक बोले क्या बात कर रहा है, मेरे को तो रास्ता सीधा दिख रहा है, हाउ द गर्ल कैन बी, अर्थ कैन बी राउंड, लेकिन अर्थ इज राउंड। आप देखोगे प्लैनेट में हम लोग ऊपर खड़े हैं, गिर जाएंगे, लेकिन ग्रेविटेशन है, इतना सारा चीज है जो हमें मालूम ही नहीं है। लेकिन स्कूल में आज भी क्या बोल रहे हैं, सन इज राइजिंग फ्रॉम द ईस्ट। ऑफ कोर्स वो स्कूल में मालूम है लोगों को, ऐसा नहीं है सन इज स्टेशनरी वी आर रिवॉल्विंग, लेकिन सदियों से सिखाया जा रहा था कि वो ईस्ट में उगता है सन। एनीवे, तो सबकॉन्शियस माइंड आपको उनको घर पे सिखाना है, अगर इफ यू वांट योर चाइल्ड टू बी सक्सेसफुल। और वो क्या है, क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन। अगर आपका चाइल्ड कुछ आड़ा दड़ा बात बताए कि ऐसा करेंगे क्या, अरे पागल है क्या, क्या बक रहा है, तो ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। वी शुड गिव अटेंशन टू व्हाट इज सेइंग, even if he's talking, because all the best ideas are treated as nonsense at first. All the best ideas are treated as nonsense at first. And what is nonsense? What is nonsense? आपका सेंस जो है, मतलब you can touch, you can see, you can smell, you can taste, you can hear, that is sense. All these 5 चीजों को जो समझ में नहीं आता, that is nonsense. And success is always nonsense. क्योंकि सक्सेस वही आदमी सोचता है कि मैं वो करूंगा। 16 साल का बच्चा ये सोचता है कि पहली मैच मेरी पाकिस्तान में है, वहां इमरान खान, वकार यूनुस, वसीम अकरम, और वो बॉलर था अब्दुल कादिर, ऐसे सारे बॉलर मुझे बॉलिंग डालेंगे, फिर भी मैं सक्सेसफुल होकर वापस आऊंगा। 16 साल का बच्चा, पब्लिक बोलेगे नॉनसेंस। वो सचिन तेंदुलकर ने वो नॉनसेंस को सेंस बनाया, जाके फोड़ के आया उनको। और पहली मैच में वकार यूनुस का भी पहली मैच थी, वकार उसमें इतना फास्ट बॉल डाल दिया, उसके नाक को लगा, नाक टूट गया, खून। अंदर से एक डॉक्टर ग्राउंड पे आ गया, उसको बोला कि तू अंदर चल, मर जाएगा, डोंट स्टैंड हियर, इतना खून बह रहा है। सचिन बोला मैं वापस जाएगा नहीं।
मैं अभी आज गया तो मैं वापस क्रिकेट नहीं खेल पाऊंगा, मैं डरूंगा, फास्ट बॉलिंग से डरूंगा। वो हटा नहीं वहां से। ये उसका माँ बाप का, उसका अपब्रिंगिंग है। फाइट करना है, भागना नहीं है। He stood there, 54 रन बनाया, 54। पहली मैच में 54। जब जा रहा था इमरान खान उसको बोला बेटा तू कुछ बनेगा, तेरे में दम है, तेरे में दम है, तू कुछ बनेगा। इमरान खान उसके बाप की उम्र का आदमी बोला तू बहुत बड़ी हस्ती है, तू बहुत बड़ा बनेगा, तेरे में ताकत है, मेंटल टफनेस है। तू गया नहीं, नाक टूटा, खून बह रहा है, तू बोला जो होगा देखा जाएगा, लेकिन अभी मैं भागूंगा नहीं यहाँ से। और जब वसीम अकरम, टीवी पे देख के हम लोग डरेंगे इतना फास्ट, वसीम अकरम, वकार यूनुस, इमरान खान और अब्दुल कादिर, इनको मारा उसने उधर, 54 रन करके वापस आए। तो ये बच्चों को सिखाना है, अरे तेरा खून आ गया भाग जा, नहीं, यू हैव टू स्टैंड देयर, डिलीवर फॉर द कंट्री। तू तो देश के लिए गया, टाइम पास करने नहीं गया। और उसकी जो पिताजी का डेथ हुआ, उसकी माँ ने उसको बोला कि तुम्हारे पिताजी को अच्छा नहीं लगेगा, तुम मैच छोड़ के आओगे, ही इज नॉट हियर। उनके अंत संस्कार को तुम आओगे, उनकी आत्मा को अच्छा नहीं लगेगा, वो बोलेंगे देश का काम छोड़ के तुम मेरे लिए आया। ये बाप। और सचिन वो मैच खेला, रोते रोते खेला, 175 रन है जो भी मारा उसने, आपको याद होगा जिम्बाब्वे के साथ मैच चल रहा था, वो टाइम पे उसको मालूम पड़ा था उसका पिताजी चला गया, बट ही स्टूड देयर, ही प्लेड बिकॉज ही थॉट, ही न्यू माय फादर वुड हैव लव्ड दिस, दैट वाज द अपब्रिंगिंग व्हिच वाज गिवन टू हिम। यू हैव टू फाइट एंड यू हैव टू डू इट फॉर द कंट्री, खुद का मत सोच। सो ये क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, ये सब बच्चों को हम लोग बचपन में ही सिखाना चाहिए। बचपन ने लिखी कहानी मेरी, कैसे बदलती जवानी मेरी। उसको आगे जैसे मैच्योरिटी जो है वो बचपन में सिखाना चाहिए। वो आके बोलेगा मेरे स्कूल में मेरे बच्चों ने मुझे ये बोला, आपने आप उसको सिखाओ, ठीक है, उसकी भी एक साइड ऑफ द स्टोरी होगी, उसको समझ। अगर वो फिर भी बोल रहा है ठीक है, दे दे उसको जो चाहिए। टेल हिम मैच्योरिटी। ऐसा बोल रहा है चल हम लोग फाइट करेंगे, तो जिंदगी भर फाइट करेगा। किसी के साथ रिलेशनशिप अच्छा नहीं, हस्बैंड वाइफ भी फाइट करेंगे, बच्चे से भी फाइट करेगा। कितने लोग मैंने देखा है कि बच्चे से जमता नहीं है, बच्चे से बात नहीं करता है, वाइफ से बात नहीं करता है, झगड़ा होता है, माँ बाप से बात नहीं करता है। ऐसे क्यों? क्योंकि उसको बचपन में बोला है कि माय वे और हाईवे। सामने वाले का समझे, चल तेरे को खुशी मिल रही कर, दैट इज मैच्योरिटी। मैच्योरिटी मतलब सामने वाले की खुशी में खुशी देखना, इसको मैच्योरिटी बोलते हैं। लव, केयर फॉर अदर्स। आमिर खान की माँ, एक बार आमिर खान बैडमिंटन की मैच जीता, फिर माँ को बोला माँ मैं जीत गया, एकदम चिल्लम चिल्ली करने लगा, तो उसकी माँ ने बोला कि ज्यादा डिस्प्ले मत कर, तुम जीते हो अच्छी बात है, लेकिन जो हारा उसका सोच। वो जो बच्चा हारा है वो बेचारा उधर दुखी बैठा है, तो उसको जाके बोल कि तू अच्छा खेला, उसके सर पे हाथ रख, उसको शेक हैंड कर। तब आमिर खान बोला मुझे समझ में आ गया, हम लोग जीत गए करके बोम्बा नहीं करना है, जो हारा उसके भी आंसू पोंछने की ताकत चाहिए, वही सच्चा विनर है। वो उसकी माँ ने सिखाया, आमिर खान की माँ ने। तू जीता उसकी खुशी मत कर, जो हारा उसके आंसू पोंछेगा ना, हारा वाला भी आप तुमको ब्लेसिंग देगा। सो लव एंड केयर फॉर अदर्स। ओके, अब इंटेलिजेंट क्वेश्चन, लेकिन सक्सेस के लिए चाहिए EQ। व्हाट इज दैट? कैन यू टाइप व्हाट इज EQ? Emotional quotient, yes, emotional quotient. Now intelligent quotient is how clever you are. Emotional is how your emotions you can control. सिंपल वर्ड्स में अगर बोलूं इमोशनल कंट्रोल का मतलब क्या है, आप अपनी भावनाओं को, इमोशंस को कैसे कंट्रोल करते हो। अपने इमोशंस को, अगर गुस्सा आ गया, मैंने उसके जाके गाली दे दिया, मतलब मेरा इमोशन पे कंट्रोल नहीं है। अगर मुझे कुछ बोल दिया कोई, तो मैंने उसको उल्टा अटैक किया वर्बली, मतलब कर, आई एम नॉट सेइंग डोंट फाइट और समथिंग, लेकिन यू हैव टू बी इन कंट्रोल ऑफ, कुछ के करना चाहिए। इमोशनल कंट्रोल जो धोनी के पास है, धोनी इमोशनली स्ट्रांग। धोनी कभी भी पिच पे देखेगा बुम बुम करते हुए दिखेगा नहीं, कितना भी प्रज्ञ। तो सक्सेसफुल आदमी वही है जो अपने इमोशन पे कंट्रोल कर सकता है। EQ। आप समझ रहे? तो इमोशनल क्वेश्चन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। और आपको आपके बच्चे का EQ स्ट्रांग करना है घर पे, क्योंकि इसके ऊपर स्कूल में कुछ बात नहीं होगा। Schools will not be discussing and talking about this at all as far as today is concerned। मे भी कल क्या होगा मुझे मालूम नहीं, लेकिन आज तक उन लोग का उस पे ऊपर ध्यान नहीं है। हर एक बच्चे का एक पर्पस है, why he has come on this earth। उसका एक पर्पस है, वी हैव टू हेल्प हिम फाइंड आउट
दैट पर्पस, और उसको ये बताना चाहिए कि हाउ यू कैन अचीव दैट पर्पस। और वो पर्पस जो है वो सॉल्व करने के लिए भगवान एक उसको देता भी है कुछ प्लस पॉइंट। कोई अच्छा सिंगर है, कोई अच्छा पेंटर है, कोई मैथ्स में अच्छा है, कोई पढ़ाई में अच्छा है, तो हर एक को कुछ ना कुछ प्लस पॉइंट है, वो हमने ढूंढना चाहिए बच्चे का। हर एक को एक ही आर्ट स्टिक नहीं निकालना चाहिए कि तो पढ़ाई में अच्छा है तो अच्छा है, लेकिन तो पढ़ाई में अच्छा है तो अच्छा है ये खाली स्कूल बोलेंगे, आप ये मत बोलो। अगर वो पढ़ाई में अच्छा भी नहीं रहेगा तो भी आप उसको बोलो कि बेटा तेरे में कुछ है, और वो ढूंढो, आप माँ बाप मिलकर उसका ढूंढो और उसमें उसको सपोर्ट करोगे, इसमें तो आगे जा तू कुछ करेगा। और हर बच्चे में उस स्पार्क है, हर बच्चे में ऐसा कोई चीज है जो अलग है, लेकिन हम लोग एक ही चश्मा लगा के देखते हैं, पढ़ाई, स्कूल, मार्क्स, बस। पढ़ाई में अच्छा नहीं है तो ये अच्छा नहीं है, तो आप उसके दिल को कितना ठेस पहुंचता होगा बच्चे की, शायद वो कुछ और करने के लिए पैदा हुआ है दुनिया में, लेकिन हम लोग उसको बिठा रहे ये कर। आई एम नॉट सेइंग इसका मतलब कि पढ़ाई में फेल होना चाहिए, उसने पढ़ाई करना चाहिए, उसने जो भी करना चाहिए, लेकिन उसको इमोशनली खत्म मत करो। बोलना ठीक है तेरे मार्क्स कम आ रहे, आई अंडरस्टैंड देयर में बी सम प्रॉब्लम, तू अभी आपने वो तारे जमी पे देखो, बच्चे का कोई गलती नहीं होता है, उसको प्रॉब्लम है तारे जमी पे, उसको कितना क्रिटिसाइज करते हैं वो लोग। आमिर खान उसको समझता है और उसमें से वो पेंटर निकालता है तारे जमी पे। ओके, तो अभी आपको मैं एक लास्ट स्लाइड बोल रहा हूँ। हम लोग को मेन क्या चीज है, व्हाट वी शुड रिमेंबर एज अ पेरेंट, व्हाट वी शुड रिमेंबर, लेट मी टॉक यू थ्रू। हम लोग जो बात करते हैं उससे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी इसके ऊपर मैं आपको लास्ट में, बिफोर आई क्लोज, आई विल टेल यू समथिंग इन डिटेल अबाउट दिस, और वो पॉइंट आप जिंदगी में याद रखो ताकि आपके बच्चे को सक्सेस मिलेगा। वर्ड्स जो है, वर्ड्स वो क्या है उसके ऊपर हम लोग आगे बात करेंगे। बिफोर आई क्लोज आई विल टेल यू जस्ट द लास्ट पॉइंट, ताकि आपके आपके पास वो याद रहे जिंदगी भर, इसके लिए लास्ट में बताऊंगा वर्ड्स। जादू की जप्पी, बच्चे को फिजिकली नजदीक लेना जरूरी है। जादू की जप्पी एमबीबीएस पिक्चर में जो दिखाया, बच्चे को गले लगाना जरूरी है, फिजिकल टच बहुत जरूरी है। ही में भी 20 साल का हो, 25 साल का हो, फिजिकल टच उसको एक सिक्योरिटी, सेंस ऑफ सिक्योरिटी देता है और उसको अच्छा लगता है, इमोशनल इमोशनल सेटिस्फेक्शन मिलता है उसको। तो माँ बाप ने उससे फिजिकल रहना चाहिए, वी हैव टू कडल हिम, वी हैव टू, हाँ उसके सर पे हाथ घुमाना चाहिए, उसको फिजिकल टच करना जरूरी है। और जादू की झप्पी इज अ ग्रेट एग्जांपल। एमबीबीएस, मुन्ना भाई एमबीबीएस का पिक्चर देखो, इसमें आपको अगर देखा नहीं होगा आप श्योर देखा होगा, नहीं तो देखो उसमें मालूम पड़ेगा। उसके जो ड्रीम्स है, वो बोलेगा मुझे ये बनना है, एस्ट्रोनॉट बनना है मुझे, तो आप उसको एनकरेज करो कि यस तू कर सकता है, अभी तो पढ़ाई कर और विल फाइंड आउट द वे हाउ यू विल बिकम दैट। पागल है क्या, ऐसा मत बोलो, अरे तू कहाँ कर सकता है। हम लोग वी शुड सपोर्ट हिज ड्रीम विद ओपन आईज एंड ओपन हार्ट्स। और उसका पर्सपेक्टिव देखो, मतलब मैं अगर यहाँ 6 लिखता हूँ, मैं यहाँ 6 लिखता हूँ तो आपको वहां से 9 दिख रहा है, मैं 6 लिखाऊंगा तो आपको 9 दिखेगा। पर्सपेक्टिव है, आपको वहां से 9 दिख रहा है, मुझे यहाँ से 6 है। आपके बच्चे को कुछ चीज दिख रहा है अलग से, आपको अलग से दिख रहा है, झगड़ा करके फायदा नहीं है। आज के बच्चे बहुत तकलीफ में है। हमारे यहाँ मोबाइल नहीं था, हम लोग के वहाँ कुछ एंटरटेनमेंट का जरिया नहीं था, आज 24/7 एंटरटेनमेंट है। वो एंटरटेनमेंट से उसको पढ़ाई करनी है, बच्चा तकलीफ में जा रहा है, हिज अटेंशन एक जगह रहता नहीं है। तो हम लोग वी शुड बी सिंपैथेटिक टू दैट, वी शुड नॉट से कि हमारे जमाने में आसान था। मैं तो बोलता हूँ कुछ नहीं था, हम लोग ग्राउंड पे कंटेंट है, आपको खींचने के लिए कंटेंट बना रहे फेसबुक और इस तरह की कंपनियां, तो बच्चे का ध्यान उधर ज्यादा रहता है। सो ओके, सो दिस इज व्हाट आई वांट टू कवर। तो मैं आपको एक ही पॉइंट बोलूंगा कि ईक्यू जो है, इमोशनल क्वेश्चन जो आपको घर पे करना है, स्कूल में आईक्यू होगा, होने दो, वो बच्चे को पढ़ाई भी करना चाहिए, नंबर 1 आना चाहिए, होने दो नंबर 1 नंबर 2, बट आप इमोशनली उसको स्ट्रांग बनाओ तो उसको नंबर का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जिंदगी में आगे ही जाएगा। जो आदमी इमोशनली स्ट्रांग है वो जिंदगी में हर हर जंग जीतेगा। तो अभी एक ही पॉइंट मेरा बाकी है जो मैं आपको लास्ट को बताऊंगा, लेकिन मैं अभी रिक्वेस्ट करूंगा मिस्टर महेंद्र बोराटे, उनके वजह से मैं सेमिनार कर पा रहा हूँ, क्या जो मन में है मैं बताऊं, तो मेरे सेशंस होते रहते हैं, लेकिन ही मैनेज्ड एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ फेसबुक एडवर्टाइजमेंट, ये सब उन्होंने किया है। तो मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि वो 2 शब्द कहे। मिस्टर महेंद्र बोराटे प्लीज। Yes, thank you very much, sir. Good evening, friends. Uh, my name is Mahendra Borate, and I am Senior आपका Business आवाज नहीं आ रहा Associate. है, आपका आवाज नहीं आ रहा है। मेरी आवाज नहीं आ रही है? आ रहा है, सॉरी 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 सॉरी, आ रहा है, हाँ, आई एम सॉरी। yes. My name is Mahendra Borate, and I am Senior Business Associate with LIC since last 20 years. लास्ट 20 साल से मैं LIC के साथ सीनियर बिजनेस एसोसिएट हूँ। एज राइटली सेड बाय सर, पेरेंटिंग इज एन आर्ट। पेरेंटिंग एक कला है, और इस कला के जरिए जो हमें सीखनी है, ना कि हमारे बच्चों को, और इस कला के जरिए, इस आर्ट के जरिए के
शिवाजी महाराज हो या सचिन तेंदुलकर या बिल गेट्स या कोई भी जो अच्छे लोग, कल के अच्छे नागरिक जो बनाने हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट काम हमारा है। इसलिए और इसीलिए हम ये सर का सेशंस हमेशा रखते हैं, आगे भी रखा करेंगे। और आप सबको रिक्वेस्ट है कि अगर आपको अच्छा लगा है ये सेशन तो आप अपने फ्रेंड्स का नंबर शेयर करिए, जिनको हम ऐसे अगले प्रोग्राम जो होंगे उसके बारे में बता सकेंगे। जैसे कि सर ने कहा इसके बारे में, इस प्रोग्राम के बारे में, या बच्चों के बेस्ट पेरेंटिंग के बारे में, या बच्चों का कल जो है, बच्चों के रिलेशनशिप्स, उनका वेल्थ और उनका करियर बहुत इंपॉर्टेंट है। और एज अ गुड पेरेंट या अच्छे पेरेंट होने के नाते वी मस्ट गिव आवर चिल्ड्रन द बेस्ट। एक अच्छा पेरेंट होने के नाते हमारा कर्तव्य है, हमारी ड्यूटी है कि हम हमारे बच्चों को बेस्ट से बेस्ट देख। और क्या बेस्ट दे सकते हैं हम, तो बच्चों को हम अच्छे संस्कार दे सकते हैं, और दूसरी एक चीज दे सकते हैं कि उनके लिए अच्छा बेस्ट प्रोविजन करें। जैसे कि पीयूष शुक्ला जी ने शुरुआत में कहा कि इनिशियली जैसे पेड़ को सपोर्ट लगता है, उसी तरह बच्चों को उनके करियर में भी इनिशियल सपोर्ट की जरूरत है। और LIC के जरिए और बाकी इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए भी बच्चों के फ्यूचर के लिए, बच्चों के हायर एजुकेशन के लिए अलग अलग और डिफरेंट अनबिलीवेबल प्लान्स है। अभी वो प्लान्स तो यहाँ पे नहीं बता पाऊंगा मैं, लेकिन ऐसे ऐसे प्लान्स है कि हम रहे या न रहे, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज विल बी टेकन केयर ऑफ। हम रहे या नहीं भी रहे तो भी हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारे बच्चों का हायर एजुकेशन हो या उनका मैरिज हो, उसकी केयर LIC विल टेक केयर। एज अ पेरेंट हमें एक इम्पोर्टेंट चीज बहुत ध्यान में रखना चाहिए कि जो भी बेस्ट हो हम अपने बच्चों के लिए करें, और कल जाके हमें कुछ रिग्रेट ना हो, कोई पछतावा नहीं हो कि मैं शायद ये कर पाता, या शायद मैं ये करता तो मेरे बच्चे का करियर, जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट सर ने बोला, वो अलग होता। तो वो करियर के लिए अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल है। और मैं एक चीज आपसे कहना चाहूंगा कि इवन दो योर बजट डजंट अलाउ, अगर आपका बजट आपको अलाउ नहीं करता है बच्चों को प्रोविजन करने के लिए हायर एजुकेशन का या मैरिज का, या आपके फंड्स लगता है आपको कि इतने नहीं है कि आप प्रोविजन कर पाओ, फिर भी देयर आर डिफरेंट वेज टू मेक द प्रोविजंस। क्योंकि सर हमेशा बोलते वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। जहां भी विल है वहां पे वे तो निकल आएगा। तो जिसका भी विल है, whoever is willing to know about the provisions available, कि एटलीस्ट पता तो करे कि हमारे बच्चों के लिए प्रोविजंस क्या क्या अवेलेबल है। करना नहीं करना बात की बात है, लेकिन जिसको जिसको ये विल है, दोज हु आर विलिंग टू नो अबाउट कि व्हाट आर द प्रोविजंस दैट आर अवेलेबल विथ अस, गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट गारंटीड क्या प्रोविजन हो सकती है बच्चों की, वो जानने में जो जो इंटरेस्ट रखते हैं वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं अपना कांटेक्ट नंबर यहाँ पे छोड़ रहा हूँ। माय कांटेक्ट नंबर इसमें आप लिख भी सकते हो, मैं चैट बॉक्स में भी छोड़ रहा हूँ। 9869 271 इज माय कांटेक्ट नंबर। आप मुझे फोन 9869 000 271 इज माय कांटेक्ट नंबर, यू कैन कांटेक्ट मी। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज लास्ट में सर हमें बताने वाले पेरेंटिंग के बारे में, बेस्ट पेरेंटिंग क्या है। तो आई एम नॉट टेकिंग मच ऑफ योर टाइम एंड हैंडिंग इट ओवर टू सर, प्लीज सर। थैंक यू वेरी मच। सर आप म्यूट हो आप। हाँ, आपका नंबर शायद मुझे ही आया था बाय मिस्टेक, तो आई जस्ट टाइप्ड इट टू एवरीबॉडी। ओके, तो एक पॉइंट है जो मुझे आखिरी में आपको बताना है, दैट इज ओके, तो ये हमने बात किया। और ओके, वन मोर थिंग, जैसे मिस्टर महेंद्र बोरा टॉक्ट अबाउट LIC, और मैं LIC से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं हूँ, आई एम नॉट अ डेवलपमेंट ऑफिसर या ब्रांच मैनेजर, लेकिन मेरे हिसाब से जो फाइनेंशियल मार्केट में बहुत सालों से हूँ, LIC का जो बच्चों के लिए प्रोविजन है वो अनबिलीवेबल है, वो दूसरा कोई भी प्रोडक्ट इंडिया में दे नहीं सकता। अगर आप बोलोगे आपके बच्चे की शादी के लिए 50 लाख की तरतूद होनी चाहिए, तो LIC के माध्यम से वो 100% होगा। अगर वो बच्चे का माता पिता में भी कुछ तकलीफ होगा, तो उसके पिताजी गॉड फॉरबिड चले भी गए तो भी
तभी वो बच्ची को वो टाइम पे उतना पैसा मिलेगा। अगर कोई बाप बोलता है कि मेरे बच्चे को 20 लाख मिलना चाहिए जब मेरा बच्चा 12th पास हो, और वो पिताजी को कुछ गॉड फॉरबिड कुछ हो भी गया तो भी मिलेगा। मेरे हिसाब से ऐसा दूसरा कोई भी फाइनेंशियल प्लान इंडिया में नहीं है जो बच्चों के लिए LIC के पास है, कहीं भी नहीं है। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, आप मिस्टर महेंद्र बुराटे जो है उनका नंबर दिया हुआ है, उनसे आप बात करिए। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके बच्चे, या आप, मैं जो आपको मैंने बोल रहा हूँ वो अगर आपने फॉलो किया तो आई एम श्योर दे विल बी वेरी गुड, दे विल बिकम डॉक्टर, इंजीनियर, दे विल बिकम बिग इन देयर इंडिविजुअल लाइव्स। और मनी इज द थिंग विच इज रिक्वायर्ड एवरीवेयर, तो आप LIC और गवर्नमेंट के माध्यम से कर सकते हो। तो थैंक यू वेरी मच। Okay, now let me tell you the last point which I wanted to convey. So I'm wishing you all the best in terms of parenting. लेकिन ये point क्या है, word is equal to word, word is equal to word, मतलब हमारे मुंह से जो वर्ड्स निकलता है वो हमारी दुनिया हो जाती है, एंड दैट इज अ फैक्ट। हमारे मुंह से जो भी वर्ड निकलता है वो हम, अगर किसी को बोले कैसे हो, तो अगर वो अपने बारे में बुरा बोल रहा है तो उसका प्रॉब्लम हो जाएगा, और कैसे हो अच्छा बोलेगा तो उसका अच्छा हो जाएगा। वर्ड्स हैव पावर, मुंह से जो वर्ड निकलता है उसको पावर है। और मैं आपको ये लास्ट में पॉइंट क्यों बता रहा हूँ, स्पेशली मदर्स, वो आप ध्यान रखो, बोलती है वो सच हो जाता है। मदर बच्चे को मजाक में भी कुछ बोल देगी वो सच चाहिए। मदर ने बच्चे के साथ अच्छा और पॉजिटिव बोलना चाहिए। इफ द मदर सेज तू कुछ नहीं कर पाएगा, तू कुछ नहीं कर सकता, तो वो सच हो सकता है। तो माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल द मदर्स फॉर वाचिंग दिस, आप अपने बच्चे से अच्छा ही बात करो। टॉक हेल्थ, हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी, सिर्फ अच्छा बात करो। तुम अच्छे हो, तुम अच्छे हो, तुम्हारे में दम है, तुम्हारे में कैपेबिलिटी है। अगर उसका मार्क्स कम आ गया तो भी आपने बोला जी ठीक है, शायद तुमने पढ़ाई नहीं किया होगा या क्या जो भी हुआ, अगली बार तुम पढ़ाई करोगे, मुझे विश्वास है तुम सिंसियर हो, तुम अंडरस्टैंडिंग हो और तुम मेरी बात समझ रहे हो, पढ़ाई करो, अच्छे मार्क्स लाओ। लेकिन तुम्हारे में दम है, तुम्हारे में क्वालिटी है, तुम ये मार्क्स के तो हकदार नहीं हो, तुम बहुत ज्यादा मार्क्स लाने की तुम्हारी क्वालिटी है, तुम्हारे में दम है। ये हमेशा बार बार बच्चे को बोलना बहुत जरूरी है, क्योंकि माँ के मुंह से जो भी वर्ड निकलेगा बच्चे के लिए वो सच हो जाएगा। विल्मा रुडोल्फ करके एक लेडी थी, विल्मा रुडोल्फ, उसमें चाइना में उसका स्कारलेट न्यूमोनिया हुआ था, उसके दोनों पैर काम करना बंद हुए थे, तो उसके माँ ने उसको ब्लेसिंग दिया कि मैं तुम्हें ब्लेस करती हूँ कि तुम्हें ये तुम्हारे पैर ठीक हो जाएंगे, तुम ओलंपिक्स में। तो ओलंपिक्स में वो नंबर 1 हो गई रनिंग में, क्योंकि उसकी माँ उसे बोली, और माँ उसको बार बार बोलती थी यू आर परफेक्ट, तुम्हारे पैर पर करेक्ट है, और तुम, और उसके आज भी डॉक्टर को पता नहीं चल रहा है कि क्या हुआ क्या, कि वो परफेक्ट हो गई। तो उतनी माँ के जबान में ताकत होती है। तो वो आप जो भी आप बच्चों से बात करो, पॉजिटिव बात करो, ये मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा। और ये मेरा नंबर है, और ये प्रेजेंटेशन जो है मैं आपको व्हाट्सएप करूंगा। आपका नाम आप मुझे व्हाट्सएप करिए नंबर पे, वो व्हाट्सएप नंबर है, आप मेरा आपका नाम व्हाट्सएप करिए, और पेरेंटिंग करके लिखेंगे तो मैं आपको ये प्रेजेंटेशन व्हाट्सएप कर दूंगा, ताकि इसको वापस आप देख सकते हो, सो दैट इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑल्सो। लेकिन आप इसको प्लीज सीरियसली लेके, बच्चों के साथ जो आपका बिहेवियर है ऑलरेडी अच्छा ही होगा आई एम श्योर, लेकिन अगर कुछ करेक्शन करना है तो आप प्लीज करिए, और मुझे आपका नाम व्हाट्सएप करिए ऑन दिस नंबर, आई विल सेंड यू दिस प्रेजेंटेशन। ओके, एनीबॉडी हैज एनी क्वेश्चन यू कैन टॉक, यू कैन आस्क मी प्लीज। सॉरी, मैं अनम्यूट करता हूँ, वन सेक, you can unmute yourself if you want to. Hello. Yes, tell me. Yes, sir. My daughter is 4 years old. Okay. Yeah. She is like, what happened? She doesn't study. She just like, and she has no friends actually. बहुत मस्ती करती है एकदम, बहुत ज्यादा। Can't control her at all. तो क्या करना है उसको, कैसे ये करे, पढ़ाई भी करने के लिए लाइक वो ठीक है, अभी थोड़ा इंटरेस्ट ले रही है, उसको बाजू में ट्यूशन के लिए भेज रही हूँ। तो हेलो, हाँ मैं सुन रहा हूँ। हाँ ठीक है, मैं आपको वही बोल रहा हूँ ना, इतना वो टेंशन मत लो पढ़ाई के लिए। इतना अगर हम लोग फोर्स करेंगे ना, पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो, तो उनको पढ़ाई से नफरत हो जाएगी। तो इट्स ओके, आप उसको जबरदस्ती, और 4 साल की है, आप उसको खेलने दो, एंजॉय करने दो, धीरे धीरे उसका इंटरेस्ट पढ़ाई में जनरेट हो जाएगा, और वो क्योंकि मस्ती। क्यों क्या होता है पता है सर, अभी जूम मीटिंग पे चालू हुआ है, तो काफी सारे जो बच्चे हैं ना, जब जूम मीटिंग पे होते हैं तो वो लोग खुद से लिखते हैं, दे डू देयर ओन राइटेड वर्क। बट ये इसको मतलब इसको बोलना पड़ता है, ऐसे लिख, ऐसे मत लिख। और सुन मतलब ना बहुत मतलब लाइक
बिल्कुल सुनती भी नहीं है। लाइक शी वांट्स टू, जैसे बच्चे होते हैं ना, वो क्या करें, पेरेंट्स का नहीं सुनेंगे, किसी का नहीं सुनेंगे। वो नेचुरल है, आप इट्स ओके, नेचुरल है। उनको हम लोग प्यार से कन्विंस करना चाहिए, जबरदस्ती करेंगे तो फायदा नहीं ना। उनको आपने सोचना चाहिए कि मैं इसे कैसे समझाऊं ताकि वो समझ के आएगा, वो एक्सेप्ट करना चाहिए उसको। और somebody asking, हाँ बोलिए। नहीं ये इश्यू नहीं, वो बहुत छोटी है, आप इतना टेंशन मत लो, इट्स ओके। बस धीरे धीरे उसको इंटरेस्ट आ जाएगा। ओके ओके सर, और somebody is थैंक asking यू। whether we should be strict, देखो हेलो थैंक यू, वी हैव टू बी assertive। वही देखो, आपको जहां लगता है कि आपको स्ट्रिक्ट होना चाहिए, बच्चे के लिए अच्छा है, उसको आप एक्सप्लेन करो कि ये मैं जो आपको बता रही हूँ बता रहा हूँ, ये तुम्हारे भले के लिए, क्योंकि ऐसा ऐसा है। यू गिव हिम द रैशनल, मैं बोल रहा हूँ करके करो, ये बोलने से अच्छा यू एक्सप्लेन हिम, उसको अच्छा लगेगा। यू ट्रीट हिम विद रिस्पेक्ट, बच्चे को रिस्पेक्ट से ट्रीट करना चाहिए, एज एडल्ट करके ट्रीट करना चाहिए, उनको अच्छा लगता है। मैं उसको ड्राइंग क्लास में डाला है मैंने, बिकॉज शी हैज इंटरेस्ट। डांस क्लास में भी डाला था, but due to corona I have stopped all this. Now from last Sunday I'm sending her, और ट्यूशंस के लिए भी भेज रही हूँ, तो अभी थोड़ा ठीक है, थोड़ा लाइक कर रही सब है हो वो। जाएगा। अभी अब पूनम इज आस्किंग अपने उस बच्चे के जिद और गुस्से को कैसे कंट्रोल करें। देखो वो जिद और गुस्सा जो है ना, वो बच्चा कहीं ना कहीं रिबेल कर रहा है, उसको कोई चीज अच्छी नहीं लगी है ना, तो इज ट्राइंग टू वेंट हिज एंगर। सो वी हैव टू फाइंड आउट, ऐसा कुछ होता है, क्योंकि बच्चों को कुछ बोल नहीं सकते वो लोग कि उनको क्या अच्छा नहीं लग रहा है, समथिंग विच दे डोंट लाइक, दे क्रिएट सम सीन, तो उसे गुस्सा आ रहा है तो कुछ रीजन होगा। हम लोग ने वो, वी शुड नॉट बी, ऐसा बोलते हैं ना, वी शुड नॉट बी एंग्री, वी शुड बी क्यूरियस कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये ऐसा क्यों कर रहा है मेरा बच्चा। तो उसको क्यूरियोसिटी आप करेंगे ना, इंस्टेड ऑफ गेटिंग एंग्री वी शुड बी क्यूरियस टू फाइंड आउट व्हाई द चाइल्ड इज बिहेविंग लाइक दिस, एंड यू विल गेट द आंसर इफ यू हैव अ काम माइंड। अगर आप शांत माइंड रख के विचार करोगे तो आपको आंसर मिलेगा, ये बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है, और मिलेगा आपको उसको। बी अ फ्रेंड टू द चाइल्ड, ही शुड एंजॉय योर कंपनी। अगर वो मोबाइल में घुस रहा है, टीवी में घुस रहा है, तो मे बी इज नॉट एंजॉइंग हिज मदर और फादर्स कंपनी, ही शुड एंजॉय। उसके लिए अपने को बच्चा बनना पड़ेगा, उसके तरह से वो जो कर रहा है उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और स्लोली स्लोली उसको आप जो कर रहे हो उधर लाना पड़ेगा। जबरदस्ती करोगे तो नहीं होगा। आप पीयूष, आई विल अरेंज फॉर यू फ्यू मोर सेशंस, आई एम वर्किंग ऑन दैट। आपका नंबर आप मुझे बता के रखो, मतलब भेज के रखो, आई वो ब्रॉडकास्ट लिस्ट उसमें डालूंगा, अगर कभी प्रोग्राम हो तो यू विल गेट द डिटेल्स। ठीक है, तो ये बच्चा देखो, ये बहुत बड़ा गिफ्ट भगवान ने हमें दिया है, जिनके बाद भी बच्चे हैं, इट इज अ गॉड गिफ्ट, एंड यू आर ब्लेस्ड, यू आर लकी टू हैव अ चाइल्ड। कितने सारे कपल्स है जिनको बच्चा नहीं है, और बच्चा है तो यू जस्ट लव दैट चाइल्ड सो मच। ऐसा नहीं कि डिसिप्लिन नहीं होना चाहिए, प्यार इतना होना चाहिए ना, बच्चा आपके लिए करेगा। ये जो जब ये अगर बच्चा गुस्सा कर रहा है या प्रॉब्लम कर रहा है ना, तो वी हैव टू एक्सप्लेन हिम विद लव, नॉट विद जबरदस्त। ठीक है, हेलो हाँ टेल मी। सर, आवाज आ रही है क्या? हाँ आवाज आ रही है ना, बोलो ना।